Hey, hi, I'm Somit, and this is probably going to be my first ever YouTube video. Um, I'm glad I'm doing this, to be honest. I don't know if it's gonna help some folks out there, but एक दो लोग को भी help करिए तो I guess I'll be happy. Nevertheless, I just wanted to start teaching finance. To be honest, it's because when I was studying C intermediate, I just found out that I just felt that जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़ाई गई काफ़ी सारी चीज़ें कोर्स का कंटेंट अच्छा था बट आई जस्ट फेल दैट अ लॉट ऑफ इट वाज नॉट लिंक टू हाउ प्रैक्टिकल लाइफ वर्क्स हाउ इन प्रैक्टिकली यू लुक एट दीज थिंग्स आई विश थोड़ा सा उस टाइम पे मुझे गाइड करा जाता तो बेटर रहता नॉट टू से मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे आई थिंक दे डिड द बेस्ट दैट दे कुड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नॉट टू से कि अभी एग्जिस्टिंग टीचर्स अच्छे नहीं होंगे आई मीन 6-7 साल हो गए मुझे देखे हुए सी इंटरमीडिएट सो आई एम प्रेटी श्योर अच्छे टीचर्स ऑलरेडी होंगे सो आई एम नॉट trying to shit upon anything else but it is my genuine effort कि किसी के पास monetary support इतना ना हो still or at least CA के कुछ courses complete कर पाए and I can help through finance I think I can help through finance and so yeah this is the intention of making these videos at the same point of time I think let's just start with our first chapter I think 50 marks का ही होता है financial management mostly in CM intermediate easy stuff है basic stuff है but important stuff है and I think the chapter ratio analysis is very very important because I mean so I work in consulting and मैंने जितना देखा है consulting में लोगों को फाइनेंस थोड़ा कम आता है as compared to investment bankers and of course private equity ये दोनों पीक हैं थोड़ा सा बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट विश कि थोड़ा सा फाउंडेशन अगर हम बिल्ड कर दे सीनियर इंटरमीडिएट में देन I think we will have much more better financial professionals as they grow in their life and I just hope कि आप लोग भी इससे सीखें talking about ratio analysis I mean ratio analysis बहुत important चीज़ है um, to be honest I don't think I've seen a lot of people who do it correctly and to be honest like there is nothing no as such correct or not correct in finance बट आई जस्ट फील कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे रेशियोज़ को देखते हैं उनके बिहाइंड क्या होता है फॉर्मूलाज ही नहीं पता होता है एंड इवन आई नो कि चैट जीपीटी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एनालिसिस तुम्हारी पूरी अच्छे से करके दे देगा बट एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल रेशियोज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड आई मीन to start off initially I think मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा टीच करने की I mean I'm not perfect this is my first attempt but I'll try to teach in a way which is not boring and in my opinion not boring is basically making sure that I kind of keep asking you questions so जब मैं रियल लाइफ में भी टीच करता था तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस पूछता रहता था wherein I had this engagement from students people who were listening but since of course I'm talking to camera right now and no one is listening to me but I still try to make sure that I keep that mindset with me right now wherein हर एक चीज़ के behind पहले हम क्वेश्चन पूछे कि हम अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं और या फिर इसके हम आंसर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं which is I think very very important and I think this helps make sure that the mind is alert and secondly I mean there is a lot of research regarding this to be honest like the best way to learn in life the best way to memorize is basically through testing. I don't know. I'll maybe leave a link to Huberman's podcast over this. He's a Stanford neuroscience professor. काफ़ी popular है. Many of you might already know him. If in case you don't, basically काफ़ी top notch आदमी है. I really like his podcast. Nevertheless, multiple people have agreed kind of कि अगर कुछ सीखना है याद करना है टेस्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट एंड बेसिकली टेस्टिंग अपने आपसे क्वेश्चन पूछो आंसर ना देखो और फिर अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि क्या आंसर हो सकता है इसका क्या आंसर हो सकता है फिर जब तुम एक बार गैस करो कि क्या आंसर हो सकता है देन यू प्रॉब्ली टेक अ लुक एट द आंसर एंड दैट इज़ हाउ यू फॉर्म न्यू आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट बट या बेसिकली न्यू इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में इसी तरह स्टोर होगी I did not used to use this method while studying. I wish I did. थोड़ा better होता मैं. This leads me to my third point, which is make flashcards. There is this app called Anki. मैंने GMAT की पढ़ाई करी थी recently and मैंने Anki app use करी थी frankly speaking for studying, and it helped me learn concepts. Anki flashcards are nothing but exactly what I told, right? Which is
क्वेश्चन पूछो एक फ्लैश कार्ड के एक साइड में, एंड जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें आंसर विजिबल होगा, एंड जस्ट गो डाउन on Anki, you'll figure stuff out. Maybe watch two YouTube videos out there how to best use Anki. And I think if you could just leverage this app, game changing होगा. So moving on to like I said, larger picture अगर मैं देखूँ कि ये रेशियो एनालिसिस कहाँ फिट होता है, राइट. इन ऑल ऑनेस्टी लाइक एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बार हमें चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक एक ग्लिम्स चाहिए कि तुम्हें फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी कैसी चल रही है, राइट. एंड दिस इज़ नथिंग बट डूइंग जस्ट दैट एग्जैक्टली. सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक कितने नंबर वगैरह मिलेंगे मुझे, व्हाट्स द रिटर्न ओवर देयर. आई थिंक इट्स अ वेरी सुपर ईजी चैप्टर. यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आ ही जाता है. सो फ्री के 5 नंबर आई थिंक रियली ईजी. And at the same point of time like really important for your career. I mean मैंने हार्डली कोई इंटरव्यू देखा होगा जिसमें मुझसे रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे गए, वेरी ऑनेस्टली. लाइक या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं. आई एम प्रेटी श्योर हर एक को प्राइवेट एक्विटी में ही जाना होता है, IB करके ज़्यादा लोगों को सब जगह यूज़ होता है. मैंने प्राइवेट एक्विटी के इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड लाइक इवन टू बी ऑनेस्ट आई वाजंट गुड एट देम इन दोज इंटरव्यूज़, and that's why I could not clear those. But that being said, this is like super important chapter for your life, believe me. Consulting, FP&A, auditing, सब में use होगा, not only in like hardcore finance. Right. One sec. Let me just start off from. Yeah, let's start from here. Like exactly ratios होते क्या, like for the uninitiated ratios are nothing but relationship between two number, right. कल की तारीख में मैं कहता हूँ कि एप्पल का प्राइस 10 रुपये पर kg है, राइट. 10 रुपये इज इन न्यूमरेटर, kg इज इन डिनोमिनेटर, राइट, विच बेसिकली मीन्स कि दिस इज अ रेशियो, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच इज kg एंड प्राइस, दैट्स इट, राइट. नेट प्रॉफिट मार्जिन एक सुना होगा काफ़ी सारे लोग से बात करते हैं. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कंपनीज, तो वही कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपये एंड नेट प्रॉफिट 10 रुपये. वेल नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 10% हुआ, विच बेसिकली मीन्स फॉर एवरी 1 रुपी दैट यू अर्न यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 0.1 रुपी. इट्स अ रेशियो इफ यू लुक एट इट. So yeah, nothing. I think everyone probably knows that this is just basic math stuff, but like understanding why we conduct ratio analysis I think is more important over here, which is basically देखो मैं सामने एक कंपनी, दो कंपनीज खड़ा करता हूँ, राइट. दोनों कंपनीज के प्रॉफिट $100 million. व्हाट डज दैट टेल यू? डज इट मेक एनी डिफरेंस? कुछ दिमाग में पॉपअप होता है कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ पैसा? आई नो प्रॉफिट्स को नहीं देखना, बट लेट्स जैसे प्रॉफिट्स देख के तुम इन्वेस्ट करने वाले हो सिर्फ. टू बी ऑनेस्ट यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि दोनों में मैं इक्वली पैसा लगा सकता हूँ, या फिर कौन सी कंपनी बेटर है कैसे मैं पता करूँ? वेल वन ऑफ द वेज कैन बी इफ़ यू लुक एट अगेन नेट प्रॉफिट मार्जिन, इट बेसिकली टेल्स मी लेट्स जस्ट से 100 मिलियन मेरा प्रॉफिट था, बट एक कंपनी थी उसमें उसका रेवेन्यू था $1 billion, बेसिकली 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया. बट दूसरी कंपनी का $10 billion रेवेन्यू था, यानी कि 1% नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया. आई गेस पहली वाली कंपनी ज़्यादा मार्जिन एक्रेटिव एटलीस्ट. व्हाट्स द प्राइस दैट यू पे माइट डिपेंड ऑन 10 अदर थिंग्स, बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे यू माइट इवन कंक्लूड कि मैं दोनों के लिए सेम प्राइस ही पे करूँगा, तो एक के लिए मैं ज़्यादा क्यों पे करूँ. बट हाउ आई थिंक अबाउट इट इज़ बेसिकली हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू तुम्हारे कंपनी के पास ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है टू वेदर स्टॉर्म, राइट. In that way I might be willing to pay a premium for a higher margin company over here as compared to a company which has like 1% margin. Sustainable नहीं रहता 1% margin. like Japanese companies को अगर तुम देखोगे तो बहुत ही low ROE, बहुत ही low net profit, especially the sprinter companies like Ricoh, Canon, things like companies like this. काफ़ी दिक्कत है वहाँ पे, उन लोग को ये सब दिक्कतें बहुत फेस भी करनी पड़ी to be honest. But yeah, that's the concept over here. Like that's why you want to conduct a ratio analysis, right. सिंगल अकाउंटिंग फिगर कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेगी, बट तुम जब उस अकाउंटिंग फिगर को एक दूसरी अकाउंटिंग फिगर के रिलेशन में देखोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग मच मोर सेंस, एंड दैट्स व्हाई यू conduct ratio analysis, right. And briefly like how your book classifies these ratios, and I kind of agree, is
into four parts if you look at it, right? It's basically a liquidity ratio over here. Oh, sorry. Yeah, it's basically liquidity ratios, which basically deal with short-term obligations, and which is what today's this video will focus on. Then there's leverage ratios, which basically answer the question, क्या तुम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते. सो लिक्विडिटी रेशियोज वर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एंड leverage ratios are long term borrowings तो मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, राइट. एक्टिविटी रेशियोज एटलीस्ट हाउ आई सी देम इज कि तुम्हारी एसेट्स बेसिकली इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट, इन द कंपनी, राइट. एंड फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसा अभी मैंने डिस्कस करा नेट प्रॉफिट मार्जिन, इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल तुम्हारे ऑपरेशंस हैं, यू इफ यू वांट टू मेक अ जजमेंट अबाउट दैट, you go to these kind of ratios. And I think these four buckets actually cover a whole lot of ratios, and if you have a if you actually master them, you're actually doing a good job for your finance career in your life. Of course, if you look at the first section, I've kind of written down what are the sources of information for ratio analysis: annual reports, interim reports, notes to accounts, cash flows, basically any financial information कहीं से भी मिल जाए ना, उठा के रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रस्टवर्दी है. आई मीन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कभी तुम्हें एनुअल रिपोर्ट्स और इंटरम से भी नहीं मिलेगी. मैंने कुछ तो एनालिसिस, कुछ स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन पर यूज़र बेसिस पे भी होता है, राइट, कि आपके यूज़र की वैल्यूएशन कितनी है. फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में आई हैव हर्ड फ्यू पीपल से दैट कि वैल्यूएशन के कोई मेट्रिक्स ही नहीं थे, तो इट वाज लाइक रेवेन्यू पर यूज़र कितना क्रिएट कर रहे हो, एंड इट वाज ऑल अबाउट गेनिंग मोर यूजर्स. सो उस बेसिस पे भी वैल्यूएशन होने लगती हैं कभी कभी, एंड रेशियोज कंप्यूट होता है. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. Now let's head on jump to the topic at hand, which is liquidity ratios, right? I think interesting part. Um, I mean, before I actually start teaching you what liquidity ratios are, what types of liquidity ratios, I mean, तुम्हें idea दिया, right, how to manage your short-term liquidity. And before even jumping on the chapter, I actually wanted to apply this knowledge that we have right now. And so यहाँ पे भी मैंने 3 टाइप के रेशियो लिखे हुए हैं. बुक में 5 हैं रफ आई गेस, या 5 ही हैं, या. एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने 3 टाइप के रेशियो लिखे हैं. हमें सबका मतलब एग्जैक्टली जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट आई ट्राई टू आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ हैव एन इंट्यूशन ऑफ अबाउट अराउंड हाउ टू लुक एट दीज रेशियोज, ऑलराइट. So first of all, like, I'll just explain what's happening over here. This is basically ratios, 3 ratios for 2 companies. Blue में है भारती एयरटेल and red में है वोडाफोन आइडिया, राइट. जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, मुझे दोनों में से किसी कंपनी के कोई एक साथ बायस नहीं है. I think both of them are great companies, but I'm gonna make some judgments about how I view these companies, at least right now, strictly in terms of these 3 ratios. I might be correct, I might be wrong. It should not basically in any way reflect my or my employer's opinion in a single way, alright? Nevertheless, not that. अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बेसिकली जब करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो को देखो, राइट. बेसिकली हायर का मतलब हो गया हायर लिक्विडिटी तुम्हारे पास, ओके. हायर लिक्विडिटी का मतलब हो गया हायर कैश, बेसिकली हायर करंट एसेट्स. मान लो कुछ आइटम, सारों में नहीं है, बट बेसिकली कैश ज़्यादा हो गया, इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा हो गए. आई वांट यू टू गेट अ सेंस ऑफ इट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास हायर करंट साइड्स की तरफ के आइटम ज़्यादा हैं, विच बेसिकली मीन्स कि मैं करंट लाइबिलिटीज़ अपनी ज़्यादा पे कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली ऑल ऑफ दीज रेशियोज डू. उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं किस टाइप की लिक्विडिटी रखनी टू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज़, बट दैट इज़ एसेंशियली व्हाट दीज रेशियोज आर डूइंग. And so for example, let's look at Vodafone first of all, and I think this is a very good period of time also, like, because if you remember 2016 में Reliance Jio आया था, and पूरा मार्केट ख़राब कर दिया था, to be honest. उसके बाद से Indian Telecom hasn't been the same. It's mostly 3 players right now, I guess. That's it. And if you look at it, like, let's start with Vodafone, right? Vodafone over here ठीक ठाक लिक्विडिटी थी, भारतीय एयरटेल से मार्जिनली ऊपर था, सेम सिमिलर लेवल्स पे दोनों ट्रेड कर रहे थे 2014 तक. देन 2015 में इफ यू सी देयर इज अ वेरी ह्यूज स्पाइक दैट हैज हैपेंड, ऑलराइट.
विच बेसिकली मीन्स कि उसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी आ गई थी एकदम से करंट लायबिलिटीज़ पे करने की. ऐसा क्यों? So if you look, I've kind of summed up what has happened over here. Um, so basically वोडाफोन ने बहुत सारा कैश रेज करा, ये हुआ. एंड कैश क्यों रेज करा? इफ़ यू नो, टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम बाय करना पड़ता है. स्पेक्ट्रम क्या है? अलग अलग हर्ट्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, राइट. सो 5 GHz इज़ फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द स्पेक्ट्रम्स. एंड हर एक कंपनी जो होती है स्पेक्ट्रम पे अपना हाथ डालने की कोशिश करती है, बिकॉज वंस यू हैव अ कंट्रोल एट द स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हेन यू कंट्रोल द मार्केट. एंड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स भी होती हैं. I'm not a telecom expert, but that's how at least I view it. And so Vodafone Idea was kind of going big over here, and बहुत सारा कैश एक्यूमुलेट करा एकदम से. एंड दैट्स वाई इन 2016 इफ यू सी, अगले साल काफ़ी सारा खर्चा भी हो, बिकॉज दे स्पेंड इट ऑन स्पेक्ट्रम बाइंग. बट अगेन 2016 में जियो लॉन्च होता है, राइट. बट इफ़ यू सी अगेन 2018 में देयर इज दिस अ वेरी बिग राइज. क्या होता है? Well, within a period of 1 year, they realize it's been a shit show. स्पेक्ट्रम तो तुमने खरीद लिया, बट जियो ने आके मार्केट तबाह कर दिया था लिटरली. लाइक दे वर ऑन 4G, एंड वाइल वोडाफोन आइडिया was still acquiring spectrum for 4G, जियो आया, प्लस उन लोगों ने फ्री में लॉन्च करा. बॉय सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. तो अब उस वजह से लाइक 2017 में आई रिमेंबर, आई थिंक Idea and Vodafone had started to do this, started to accumulate this cash, and this is why you see a rise in 2017. And 2018 में क्या होता है? 2018 में फाइनली आई थिंक मर्जर हो जाता है, तो दोनों की बैलेंस शीट कंसोलिडेट होती है. तो आर्टिफिशियली एक वन टाइम इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उन लोग की बैलेंस शीट जब कंसोलिडेट करते तो बहुत सारी उन लोग की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ थी. अब क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पाते क्योंकि जियो ने मार्केट तबाह कर दिया, दैट इज़ वाई द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ओइंग टू व्हिच अगेन करंट लाइबिलिटीज़ पे करने की तुम्हारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी. दैट्स वाई यू सी कि 2018 में वापस से एकदम से शूट अप करा. बट लाइक अगेन 2019 में क्यों फिर मामला ख़राब हुआ? वेल 2019 में इफ़ you guys know, there's this Supreme Court verdict that came in on AGR ruling, which was like adjusted gross revenue, if I'm not wrong. That's the full form. But basically होता क्या है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स रेवेन्यू कमाते हैं, राइट. एंड उस रेवेन्यू पे उन लोग को एक सर्टन पार्ट पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट एज कमीशन, लेट्स जस्ट से दैट, राइट. एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ये सोचना था कि बेसिकली जो फ़ोन कॉल से पैसा कमा रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम यूसेज से एग्जैक्टली पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ उसी पे ही हमें कमीशन पे करना है गवर्नमेंट को. आई थिंक 7-8% था. बट लेट्स जस्ट से उनके बैलेंस शीट में दूसरे आइटम्स पड़े हुए, राइट. मे बी टावर एसेट्स हैं, बहुत बार टावर एसेट्स को रेंट कर देते हैं दूसरी कंपनीज को, उससे रेवेन्यू कमाते हैं. डिविडेंड इनकम होती है सब्सिडरीज, जॉइंट सब्सिडरीज से. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उससे पैसा होता है, उस पर कमीशन थोड़ी ना देना होगा. बट गवर्नमेंट ने कहना था कि नहीं, बेसिकली तुम्हें नॉन कोर रेवेन्यू जो ये भी है इसके ऊपर भी पैसा देना है. इट्स अ गुड केस स्टडी दैट यू कैन स्टडी इन योर टाइम, बट दैट वाज द जिस्ट ऑफ द मैटर. एंड सुप्रीम, ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था काफ़ी सालों से, एंड सुप्रीम कोर्ट फाइनली कंक्लूडेड इन 2019 दैट नॉन कोर रेवेन्यू ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, एंड नॉन कोर रेवेन्यू के कमीशन पे भी आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को पैसा. तो गवर्नमेंट की विन हुई थी. एक्सेप्ट तबाही मच गई थी सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए. आई थिंक दे इफ़ यू सी द फिगर, आई थिंक आई मेंशन्ड इट, 84,000 करोड़ की लाइबिलिटी एकदम से खड़ी हो गई थी. एंड आई थिंक इसके बाद ही कुमार मंगलम बिरला ने एक लेटर लिखा था विद इन 1 ईयर टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर, बेसिकली सेइंग कि वोडाफोन आइडिया से चल नहीं पाएगा. लाइक यू गाइज मे बी टेक अ स्टेक, गवर्नमेंट टेक अ स्टेक एंड गिव अस सम कैश. बट अगेन इफ़ यू सी द स्टोरी ओवर है, राइट, वोडाफोन आइडिया की स्टोरी यही चल रही है, राइट. व्हेन दे गेन दे लूज, दे गेन दे लूज, लाइक दैट्स व्हाट has been happening, right. And latest, even right now in 2025 again they raised kind of money. I think 5G के लिए उन लोगों ने पैसा रेज करा, 5G रोल आउट के लिए, और थोड़े बहुत स्पेक्ट्रम ड्यूज भी इनके पड़े हुए हैं तो उसके लिए भी कर रहे हुए हैं. बट या दैट्स व्हाट essentially they have done. And if you look at now Airtel, right, it has maintained pretty stable cash management in my opinion. Like at least
बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लाइक 0.3 0.4 0.5 के बीच में है, बट लाइक pretty static over here, right? And if you see in 2020, I forgot to write one over here, but 2020 में एकदम से rise हुआ, which is basically again just like idea. एयरटेल को भी काफ़ी सारा आई थिंक पैसा देना पड़ा था, सो रफली $3 billion उन लोग ने रेस करा था थ्रू थ्रू QIP इन 2020, owing to which काफ़ी सारा कैश आया, अगेन द एबिलिटी टू पे current liabilities increased, that's why you see this increase. But yeah, what I can conclude from over here is basically, while Vodafone Idea has been like fluctuating in the sense that अच्छा मतलब like these upticks are directly you raising a lot of cash and then spending it over, ये तो काफ़ी ख़राब हुआ इनके साथ, and then this AGR issue happened over here, and then you basically maintain low liquidity all the year, and then you again raise cash. I don't trust this company, like that's what the vibe that I'm getting right now. Ki, I don't know if I can trust the liquidity ratios of this company, but like with Airtel, I would say like considering Vodafone Idea, I would still rate them better. Like uh, maybe their ability to generate free cash flows is better because काफ़ी static बना हुआ है, debt short term debt repay कर रहे हैं सही से, while Vodafone Idea को तुम देखो तो यहाँ पे गिर गया तो गिर गया, which basically means कि 0.2 से ऊपर आ नहीं पाया, 0.2 बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया to be honest, nevertheless, but yeah telecom industry में usually बहुत ख़राब ही होता है. But yeah, that's I just wanted to give you an example around how to read these ratios and maybe start to get an idea. Usually of course financial analysis करोगे तो हज़ार चीज़ें और देखोगे, but I just want you to get a sense now कि कैसे देखना शुरू करें, कैसे read करना शुरू करें, and we'll come back to this chart again while reading this. So yeah, that was a gist about like last 15 years of these liquidity ratios for telecom giants, right? Cool. Now if you look, I'm going to start with the next slide. Yeah, basically what is current ratio, which was the first ratio that we discussed. Short term solvency की हमेशा करता है, something that we knew already, but basically if you look at the second bullet, basically कंपेयर करा दो चीज़ों को, राइट? आइटम जो कि कैश में बहुत सून कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड आइटम्स जिनको हमें जल्दी से पे करना है, राइट? We kind of want to try to match these two items, and that's why the formula is current assets divided by current liabilities. Basically ₹1 की current liability है तो हमारे पास कितनी current assets हैं, and if you look over here in current ratio, टेलीकॉम इंडस्ट्री की तो हालत काफ़ी ख़राब है, इन जनरल ऐसे होती है इंडियन टेलीकॉम्स में तो एटलीस्ट कि वन से नीचे ही रहता है, यू आइडली यू वुड इमेजिन कि 1.52 तो कुछ तो, बट टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसे होता नहीं है यूजुअली यहाँ पे. इनफैक्ट करंट लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स. सो इफ़ यू लुक भारती एयरटेल 2025, इट्स नियर 0.4, बेसिकली 40% पैसा ही पे कर सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़ का. And if you look at Vodafone Idea, they are slightly higher, but that's mostly because they raised money in 2024. So yeah, that's how the current ratios looked at. And basically the question that you're answering again, enough current assets हैं current debt pay करने के लिए नहीं है with a margin of safety. That's how at least ICI book picks it, and I have just copy pasted it over here. The book also says that the acceptable ratio is generally 2.2:1, and it depends on the industry. So I just showed you industry. I don't believe कि telecom industry में, Indian telecom industry में कभी भी 2:1 पहुँचने वाला है आसपास. I think even 0.7 would be a dream, just considering last 10 years. And just FI, like these are like as is numbers, like मैंने बहुत ज़्यादा चेक नहीं करे, थोड़े डेटाबेस प्रोवाइडर्स को पिक करके in case you go deep, that's why I just keep that disclaimer. However, एक क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में एटलीस्ट आता था पहले की, लाइक करंट रेशियो में इतना क्या सीन है, मतलब करंट लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट? बट वाई डू यू वांट करंट एसेट्स टू पे? मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स क्यों नहीं पे कर सकता? लॉन्ग टर्म एसेट्स भी तो यूज़ कर सकता हूँ. किसने रोका है मुझे कि मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं यूज़ कर सकता पे करने के लिए? You can you pay? Well, the answer is yes, you can actually use long-term assets to repay, right? But okay, एक concept होता है finance में, which is debt duration, right? You kind of try to match the debt duration on it. So अगर तुम्हें दिखाई देता है कि debt तुम्हें 5 साल बाद पे करना है, right? Let's just say bullet payment एक ही है 5 साल बाद, तो you ideally want
तुम्हारी एसेट्स या फिर तुम्हारा पैसा भी रफली 5 साल बाद 5 साल के आसपास ही आ जाए, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू ट्राई टू डू. तुम अपनी एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लेट्स जस्ट से जो कि 10 साल में पैसा देंगी, 12 साल की में पैसा देंगी, उनको नहीं यूज़ करना चाहता हूँ. So let me explain this in context that we are talking about, right? Let's just say सैलरी देनी है, करंट लाइबिलिटी है तुम्हारे लिए, 2 महीने में देनी है. अकाउंट्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स यूजुअली फिट हो जाएंगे उधर. तुम उनको यूज़ करोगे ना सैलरी पे करने के लिए. डू यू सी फैक्ट्री बेस की कोई पैसे दे रहा है? अगर कोई कर रहा है तो वैसे तो पहले तो जस्ट इमेजिन लिक्विडिटी ख़राब हो रही है, दैट्स इंडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ऐसी एसेट जो कि नॉन करेंट है, वो सारी की सारी को तुम्हें कैश कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा उनको. एंड मीनिंग अगर तुम उन एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हो पे करने के लिए, दैट मीन्स यू बेसिकली मिसमैनेज योर डेट. अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पेमेंट आने वाली है, कि डेट की दिक्कत चल रही तुम्हारी कंपनी में, दैट्स फॉर श्योर. लाइक नोबडी डज दैट, एंड दैट्स व्हाई यू ट्राई टू मैनेज द ड्यूरेशन. बिकॉज वेल, 1 साल का लोन 1 साल के कैश फ्लो से रफली मैच करोगे, फैक्ट्रीज नहीं पेमेंट करोगे तुम उसको उठा के. ऑलराइट, I think I hope that gives you kind of an answer. If it doesn't, I'd appreciate कि duration concept एक बार debt का एक बार देखना शुरू करोगे. Why should we match the debt duration? Uh, yeah, that's pretty much current ratio over here. So if you again look at this chart, right, 0.4 पे exist कर रहा था, दोनों का roughly 0.4 0.3. V का ऊपर नीचे जैसे कि मैंने बताया गया, and then pretty much static. That's pretty much it. Like nothing that is out of the blue that is coming. Or to be honest, quick current and cash ratio तीनों का trend similar है, but numbers different है, which I'll explain later on why that's happening. But yeah, quick ratio, right? So current ratio में देखा तो उसमें current assets न्यूमरेटर में, right? quick ratio में मामला सिंपल है, हमने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर कर दिया. बेसिकली व्हाट वी डिड वाज करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री हटा दी और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिया. प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बी ऑनेस्ट कोई एसेट नहीं होती है. लाइक पैसा दे दिया तुमने ऑलरेडी, इसको तुम अब कैश में कन्वर्ट नहीं करने वाले, तो आई थिंक इट्स फाइन. इन्वेंट्री यूजली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट मनी. ऑल्सो लाइक it may give a false impression of a company's liquidity. I kind of agree with that line. And like you want to basically focus on things that can be quickly converted to cash, and I think inventory is not one of those. Like working capital wala time lagega usme. So yeah, that's why inventory is excluded over here. But telecom में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा because there is not a whole lot of inventory in telecom companies. So that's why you will see in this chart current और quick ratio में बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है. देखो 0.4 पे है, 0.4 से ज़रा सा नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेंटरीज नहीं होती इन लोगों के पास. The third ratio being cash ratio, which is even more strict to assess, more strict way to assess like short-term liabilities. तुम कैसे repay करोगे? And basically what you do instead of quick assets in the previous formula, तुम इधर से cash से repayment करने वाला. That is what you are doing, right? So cash में क्या है? Cash, bank, marketable securities. Marketable securities 90 दिन के अंदर तुम repay कर दो. And current investments. Current investments, I don't know. थोड़ा डिबेटेबल है, बट बुक में करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है तो लेट्स जस्ट कीप इट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू व्हाई यू शुड इंक्लूड और एक्सक्लूड, बट आई समटाइम्स एक्सक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट्स टू बी ऑनेस्ट. बट या बेसिकली द आइडिया इज कैश है तुम्हारे पास करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए कि नहीं है. आर यू गुड ऑन कैश और नॉट? कल की तारीख में दिक्कत हो गई एकदम से, तुम्हें तुरंत ही पैसा पे करना कैसे करोगे? एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू आंसर थ्रू दिस रेशियो. ऑलराइट, ज़्यादा है कैश रेशियो अच्छे नहीं होता टू बी ऑनेस्ट. लाइक इन तीनों रेशियोज को देख के बहुत बार ऐसा लगेगा कि जितने ज़्यादा रेशियोज जितना हायर उतना बेटर है. टू बी ऑनेस्ट ऐसा हर बार नहीं होता. लाइक यू बेसिकली लाइक आई सेड यू बेसिकली वांट टू मैनेज योर ड्यूरेशन. बहुत ज़्यादा कैश अगर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, दैट बेसिकली मीन्स दैट it's sitting idle. It's you're not investing in maybe your long term assets, non-current assets efficiently. Factories में पैसा नहीं लग रहा है, PP plant property equipment में तुम पैसा नहीं लगा रहे, so that kind of stuff might happen. So you want to kind of make sure that it's kind of balanced. ज़्यादा high नहीं balance होना चाहिए. Alright. If you look at this chart again, current quick में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, but if you look at cash ratio,
इट्स काफ़ी डाउन है, स्पेशली फॉर लाइक भारती एयरटेल इफ़ यू लुक एट इट. 2011 में मुझे नहीं पता कि क्या था, बट लाइक इट सीम्स लाइक कैश काफ़ी कम था, एंड देयर आफ्टर दे हैव काइंड ऑफ इम्प्रूव देयर पोजिशन, and it's been kind of static, but in 2025 I would say that it's very very low. But ठीक है, I think भारती एयरटेल यूजुअली कैश जनरेशन एबिलिटीज़ काफ़ी है मेरे ख्याल से. FCF इन लोगों का काफ़ी सही है, फ्री कैश फ्लो तो मैनेजेबल होता है इन लोग का. बट या लाइक यू कैन सी काफ़ी थिन है कैश इनकी बैलेंस शीट पे, बोथ द कंपनीज आई वुड से. लाइक वोडाफोन का तो सिंपल वही ट्रेंड है जो ऊपर था, लाइक एकदम से गिर गया फिर एकदम से अभी ये FPO करा तो पैसा रेज कर लिया. But yeah, that's pretty much it about these three ratios, I guess. Now coming on to like two more ratios. अब बेसिकली पहला वाला क्या है, बेसिक डिफेंस इंटरवल है, राइट. बेसिकली इसको ऐसे इमेजिन करो कि इफ़ यू ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन कि कितने दिन तक तुम्हारी कंपनी बिजनेस में स्टे कर सकती है बिना एडिशनल सेल्स करे, दैट इज़ इट. अब बिना एडिशनल सेल्स करे कितने दिन तक कंपनी बिजनेस में रह सकती है, राइट. इफ़ आई हैव टू आंसर दैट तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा तुम एवरेज डेली खर्चा कितना कर रहे हो, राइट. तो दैट्स द फॉर्मूला ओवर हियर, इट इज़ कि तुम खर्चा कितना करो ये तुम कंप्यूट कर रहे हो. तो कॉग्स एंड SG&A यूजुअली लूजली कंपनी के सारे खर्चे कवर कर देते हैं ऑपरेटिंग साइड पे. बट अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू यूज दिस प्रैक्टिकली दिस विल चेंज. बट अभी बुक के लिए तुम यही फॉर्मूला पिक कर सकते हो. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम डेली के कैश खर्चे फिगर आउट करने की कोशिश करो तो दिस इज़ अ वेरी लूज वे, बट इट काइंड ऑफ वर्क्स. D&A एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर तुम सारे हटा दो, कॉग्स एंड SG&A में तो तुम्हें सारे कैश खर्चे आ गए तुम्हारे बचे हुए, राइट. एंड ये न्यूमरेटर में यहाँ पे कैश खर्चा हो गया डिवाइड बाय 365, देन यू हैव योर डेली एक्सपेंडिचर, राइट. एंड नाउ ओवर हेयर टू कंप्यूटिंग बेसिक डिफेंस इंटरवल, क्विक एसेट्स तुम्हारी थी न्यूमरेटर में, उनको तुमने डिवाइड कर दिया तुम्हारे डेली खर्चे से, सॉरी. तो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारे कितने दिन का खर्चा तुम पे कर सकते हो विदाउट अर्निंग एनी न्यू रेवेन्यू, राइट. लेट्स जस्ट से दैट एवरेज डेली खर्चा तुम्हारा निकल के आ रहा है 12 रुपये, राइट. एंड तुम्हारे पास क्विक एसेट्स हैं 1200, बेसिकली मीन 100 दिन तक तुम चल सकते हो तुम्हारी कंपनी. एंड टू बी ऑनेस्ट लूजली रिलेटेड है ये टर्म टू कैश बर्न रेट दैट यू हेयर इन स्टार्टअप्स. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार फाउंडर्स लोग बात करते हैं कि कितने दिन तक हमारी कंपनी चल सकती है. दैट्स रफली व्हाट यू आर ट्राइंग टू आंसर ओवर हियर, राइट. अगेन सुपर हाई रेशियो नहीं होना चाहिए, दिक्कत करता है. बेसिकली टेल्स यू दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी इन द राइट वे, ऑलराइट. एंड फाइनली दिस इज द लास्ट वन. दिस इज बेसिकली वर्किंग कैपिटल, एंड this is kind of related to the current ratio formula that we see, and I'll explain how. So current working capital essentially formula अगर देखो quickly तो it's basically current assets minus current liabilities. Current liabilities में से short term borrowings हम हटा देते हैं. And basically what this formula tells you is कितना पैसा तुमने business में लगा रखा है to run day to day operations. Day to day operations is very very important over here. Imagine करो तुम्हारे पास current assets है. Current assets क्या reflect कर रही हैं? Basically working capital cycle में तुम कितना तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, काइंड ऑफ, राइट. अगेन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, तुम्हें वर्किंग कैपिटल में कितना दूसरों का पैसा अटका रखा है. वर्किंग कैपिटल डेज में रफली दूसरों का पैसा कितना अटका रखा है. इन दोनों का डिफरेंस इफ यू थिंक अबाउट इट काइंड ऑफ वुडंट इट काइंड ऑफ टेल यू कितना पैसा तुमने डे टू डे ले रहा है. रफली तुम ऐसे बात करोगे ना, जैसे 100 दिन का मैंने पैसा लगा रखा है, बट रफली मैंने 80 दिन का पैसा अपने क्रेडिटर्स वगैरह से फाइनेंस कर रखा है. तो 20 दिन की वर्किंग कैपिटल तुम्हारे पास पैसा बचा हुआ है ना. डेज में मैं बात कर रहा हूँ, बट यूजुअली अमाउंट में बात होती है. बट यू आई वांट यू टू गेट द जिस्ट. बेसिकली तुमने दूसरों से पैसा रिसीव करना है करेंट एसेट्स में 1 करोड़ रुपए, और तुमने दूसरों का पैसा देना है 50 लाख रुपए. तो रफ तुमने यानी कि एक्चुअली में 50 लाख रुपए ही रिसीव करना है नेट में, विच बेसिकली मीन्स तुमने 50 लाख रुपए अपने कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में फंसा रखे हैं. डे टू डे ऑपरेशन क्यों? क्योंकि करंट की हम बात करें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, सिंपली दैट इज इट, ऑलराइट. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट विच इज बेसिकली आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड कि यहाँ से हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्यों हटाते हैं. Okay, so this is debatable, not something that is done standardized everywhere, but this is mentioned in the book. आपकी बुक में यही दिया है कि आप करेंट लायबिलिटीज़ में से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हटा दो, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट.
And let me explain why we're doing that. Why don't we pick like state of current liabilities? So अब imagine करो दो companies हैं, alright. Current assets current minus current liabilities exactly same आती है. Let's just say 100 करोड़ की निकल के आती है working capital. You're like okay, 100 करोड़ की working capital है and revenue let's just assume कि 1000 करोड़ है. 10% of the revenue is roughly working capital. You're like fine okay. बट दूसरी कंपनी में तुम जाके देखते हो तो पता लगता है अच्छा वो एक्चुअली में 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है बट उसके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एकदम भर के पड़ी हुई हैं. एंड जब भर के पड़ी हुई का मतलब है लाइक जस्ट से 400 करोड़ की उसके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी. तो एक्चुअली में अगर उसके पास वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं होती तो वर्किंग कैपिटल कितनी होती? 500 करोड़ की होती, विच इज़ वेरी ह्यूज. एंड लेट्स जस्ट अज्यूम दैट बोथ ऑफ दिस कंपनीज आर इनटू सेम बिजनेस, एवरीथिंग इज सेम. एक कंपनी 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में मैनेज कर ले रही है अपनी ऑपरेशन, तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर ले रही है, बट दूसरी वाली कंपनी को 500 करोड़ का वर्किंग कैपिटल अपना ब्लॉक करना पड़ा जस्ट टू अर्न 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. क्लियरली पहली वाली कंपनी ज़्यादा बेटर है, उसको कम पैसा लगाना पड़ रहा है, उसने अपने क्रेडिटर्स के साथ ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, डेटर से ज़्यादा मे बी पैसा रिसीव कर रही है ज़्यादा जल्दी, वट एवर द केस मे बी, बट लाइक फर्स्ट कंपनी इज क्लियरली बेटर देन द सेकंड वन. एंड जब तुम अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं एक्सक्लूड करोगे यहाँ पे, यू कैंट रियली फाइंड आउट. एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एक्सक्लूड करने से ना तुम्हें एग्जैक्टली ऑपरेशनल लेवल पे पता लगता है कि इस बिजनेस की एक्चुअली वर्किंग कैपिटल कितना है. तो दोनों में से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एक्सक्लूड कर दो एंड देन यू विल फाइंड आउट लाइक व्हाट्स द एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल फॉर द ऑपरेशनल बिजनेस ओवर देयर. आई थिंक यार दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस फर्स्ट वीडियो. आई थिंक काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, 40 मिनट ले लिया, मोर देन आई थॉट आई वुड. But in case you guys see this video, I'd appreciate if you guys could just tell me whether you like the format, what should I change. I'm very open to feedback right now. And yeah, I just hope that you guys like this video. In case you didn't, feel free to drop in a comment. I'll see you guys in the next one. Bye.